Good morning, Ayushi. Good morning, ma'am. Okay, I'm just waiting for some more students. There is only one student in the group. Why it happens so? I hope everyone got the information about morning class. Let's wait for some more minutes, then we'll start session. This morning session is new for you guys? No, we always have a class on Thursday morning. Okay. So it's new with me, right? Okay, let's wait for 2 more minutes, then we'll start. Okay, class, welcome to the session. So, Ayushi, Avinash, Nishan. How many of you taken class with me earlier? I have. You have, okay. So basically, today's session is related to your GS subject. And in this session, we are going to discuss about history. So if someone attended my class earlier, so we have done Delhi Sultanate in our previous session. But who have not attended that session, it's not a very big deal, because today's session we are going to discuss about some important PYQ, which are already part of some important examination as well. So I'm going to share screen with you guys. Just let me tell the screen, and everything is clear to everyone. Yes. Is it visible? Is the screen is visible to everyone? Yes or no? Yes, ma'am. Great. So as you all know that the history is important part of every examination, and in every examination you have medieval Indian history. Okay. And maximum student face confusion in this medieval Indian history. So I'm going to discuss some important PYQ, which is already uh, related to many examination, not only some examination, but many examination have given this portions and part and department. So administration of Delhi Sultanate is important. We have already discussed about the important dynasties earlier. So I hope you have you know about that Delhi Sultanate dynasties and all. Do you have any
information related previous session, or is this new for you? Just let me know, then I'll start. Nishan and Chandrita. Okay. Nishan, you were also there in my session? Hello? I'm audible? Yes or no? Chandrita, Nishan, are you in the class? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. I think he's into his Okay. 15th over Okay. now. One. So I hope this topic is not new for you. So I'm just starting this topic according to the classes. So first of all, if we talk about the administration during the Delhi Sultanate, it means I was talking between the time period of 1206 to 1526. Okay. I'm just giving you a brief about the dynasties. So there were almost 5 dynasties which were important. Started with Mamluk dynasty, okay, Mamluk or slave dynasty, where we have Iltutmish, we have Razia Sultana and Ghiyasuddin Balban. All were important rulers of Mamluk dynasty. Then we have Khilji dynasty. Okay. Then we have Tughlaq dynasty. We have Sayyid dynasty. And last, we have Lodi dynasty. So whatever happened during the Delhi Sultanate period, these 5 dynasties were important. These all dynasties were separate, but most of the time they were using the administration in the same way. They were using according the Sharia law. ठीक है, उसी के हिसाब से सब चल रहा है. Maximum department are working same. So let's start the administration of Delhi Sultanate and important portions जो ज्यादातर examinations में पूछे जाते हैं. I'm just focused on the those points. ठीक है. So Sultan was the supreme head of the state, and what were the important ministers? Wazir, which is prime minister. Ariz a Mumalik, that is military head. Qazi, that is chief judge. Okay. What about the revenue system? So they had started one system, that is Iqta system, which is initiated by Iltutmish. Who is Iltutmish? Iltutmish was the Sultan under Mamluk dynasty or slave dynasty. Then they have judiciary, which was based on Islamic law, that is Sharia, and they were using the official language in their court, that is Persian language. If we talk about the architecture and culture, so we have seen blend of Indo-Islamic styles in many monuments. We have seen the Qutub Minar, Alai Darwaza, and some more monuments also there, which they were using Indo-Islamic style. So let's start some questions which is related to Delhi Sultanate, and you just try to give the answer if you can or no. So just write answer in your notebook and cross-check your answer whether you are giving the right answer or not. So number 1, this is the statement. He was a Delhi Sultan who started the practice of Sijda and Paibos. So this is the terms which were using by important ruler, which he initiated in his court. ठीक है, एक तरह का ये किसी को जैसे हम मॉर्निंग विश करते हैं या कोई भी विश हम कोर्ट में जाके करते हैं, तो he started one practice, Sijda and Paibos. There are 2 different positions of wish good morning or anything. ठीक है, तो वो कौन सा दिल्ली सुल्तान है? Which was the Delhi Sultan who started this practice? So there are option: Firoz Shah Tughlaq, Ghiyasuddin Balban, Iltutmish, and Ibrahim Lodi. Can anyone tell me the answer, please? B. B. Okay, very good. This is right. Ghiyasuddin Balban. He was very important ruler under Delhi Sultanate period. ठीक है, so he is initiated Sijda and Paibos. Very important question as well. बहुत सारे examination में आया हुआ है. Favorite question है examiners का. Maximum they ask this question in railways, BPSC, WBCS, and many examination. ठीक है, जो भी आप PYQ check करोगे 5 years का, उसमें ये question जरूर होता है.
Next question is, which ruler of Delhi Sultanate was called the slave of slave? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, गयासुद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश. कौन सा रूलर जिसे स्लेव का स्लेव यानी गुलाम का गुलाम कहा गया है? So what will be your answer? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, गयासुद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश. Is it A? Okay, कुतुबुद्दीन ऐबक. Any other answer? Guys, this is wrong answer. I'm just telling you कि मैक्सिमम स्टूडेंट का आंसर ए होता है और ये गलत होता है. कैसे गलत होता है? कि वी हैव रेड अबाउट मोहम्मद गौरी. ठीक है, मोहम्मद गौरी इंडिया में आता है एंड 2 इंपॉर्टेंट बैटल लड़ता है, तराइन बैटल 1 एंड तराइन बैटल 2. He won second Tarain battle and he defeated राजपूत रूलर पृथ्वीराज चौहान. ठीक है, उनको डिफीट करने के बाद ही जस्ट अपॉइंट हिज जर्नल, अपने अपॉइंट जर्नल को यहाँ अपॉइंट करता है इंडिया में, एंड दैट पर्सन इज कुतुबुद्दीन ऐबक. ठीक है, अब ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, ही वाज द स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी बेसिकली. ठीक है, एंड अगेन द नेक्स्ट सुल्तान आफ्टर कुतुबुद्दीन ऐबक वाज हिज सन. कुछ टाइम पीरियड तक उसका सन रहता है, बट he was not competent well enough, तो इल्तुतमिश उसको हटाकर then Iltutmish will be the next ruler after कुतुबुद्दीन ऐबक, which was very successful. अब ये भी तो slave है. I hope now you understand. Slave of a slave. So answer will be option number D, Iltutmish. Is it clear? Is it clear, guys? Yes, ma'am. Great. Next, which ruler established the department Diwan-e-Arz? Very important. Department. Question banega hi banega. There were numerous rulers who have initiated many departments, but उतने सारे department पढ़ने का समय अब नहीं रहता. So what are the important department? I'm just giving you the list also, but first you give me the answer about that. दीवान-ए-अर्ज जो है वो इनिशिएट किसने किया? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक. Any guess? जितना स्लो आंसर करोगे उतने ही कम क्वेश्चंस होंगे, उतना ही कम डिस्कशन होगा. जितने फास्ट आंसर करोगे ज्यादा से ज्यादा वी कैन कवर दी सिलेबस. सो व्हाट विल बी द राइट आंसर हियर? अगर गेस करोगे तो किसको करोगे? ए बी सी डी? If you are sitting in an examination hall, then you will take this much time. तो बस हो गया, एग्जाम खत्म हो जाएगा. The right answer is बलबन. ठीक है, let's see some department, और you just take a screenshot of this. Maybe मैं PDF जब देती हूँ तो हो सकता है ये डिपार्टमेंट मैंने ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, but this is very important, guys. Now दीवाने वजारत और वजीर, this is the same thing. वजारत और वजीर, ठीक है, जैसे हमारे नेशन में प्राइम मिनिस्टर अभी वर्क करते हैं, उस समय कौन इंपॉर्टेंट था? वजीर इंपॉर्टेंट थे. एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ देम? रेवेन्यू मेंटेन करना, एक्सपेंडिचर्स का ख्याल रखना, एंड ही हैड टू लुक आफ्टर द फाइनेंस ऑफ द एम्पायर. तो दीवाने वजारत डिपार्टमेंट इज इनिशिएटेड अंडर इल्तुतमिश. Just try to understand this thing. Whichever the founder of the department, that is important. So दीवाने वजारत is initiated with इल्तुतमिश, और उसके बाद इसको स्ट्रेंथन किया है अलाउद्दीन खिलजी ने. But they were not asking about the strengthening, but they were asking mostly who was the founder of this department. तो finance department का दीवाने वजारत. Then next is दीवाने-अर्ज, which we had just talked about. दीवाने-अर्ज, it means military department. ठीक है, तो बलबन इनिशिएट दैट, एंड बलबन वाज द फर्स्ट पर्सन. उसने एक बहुत बड़ा स्टैंडिंग आर्मी जो है वो इनिशिएट किया था. ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी ने उस आर्मी को कैश सैलरी दिया. सो ही वाज द फर्स्ट सुल्तान हु हैव गिवन द कैश सैलरी टू एवरी सोल्जर्स. ठीक है, तो दीवाने-अर्ज कौन है जो डिपार्टमेंट को मैनेज करेगा? विच डिपार्टमेंट? दैट इज आर्मी ऑर्गेनाइजेशन. ओके, सो देयर इज अ senior person of this department, that is Arz A. Mumalik.
अर्ज ए मुबालिक, ठीक है, ही वॉज द ऑफिशियल अंडर दिस डिपार्टमेंट। तो क्वेश्चन कभी भी दोनों में से कुछ भी पूछा जाता है, वेदर दे आस्क अबाउट अर्ज ए मुबालिक, दे गिवन द पोस्ट आल्सो एंड दे आस्क हु स्टार्टेड दिस अर्ज ए मुबालिक पोस्ट, ठीक है। तो ये कुछ डिपार्टमेंट है जो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। देन दीवाने इंशा, दीवाने इंशा मीन्स डिपार्टमेंट ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, द लेटर्स, द डिलीवरीज एंड ऑल, ठीक है। हैंडल्ड रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस एंड ड्राफ्टिंग ऑफ फरमान्स, this is also initiated by Iltutmish. And Diwane Risalat, maximum time you can see this question in your PYQ, that is previous year question paper, and he dealt with the foreign envoy and legal matters, ठीक है। तो किसने स्टार्ट किया? इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया। तो यू कैन मेक द टेबल एज पर योर रिक्वायरमेंट की हमारा सबसे पहले कई स्टूडेंट हैं जो ये सोचेंगे कि इल्तुतमिश का जो डिपार्टमेंट है, तो आई जस्ट गोइंग टू मेक दिस टेबल एज पर दी इनिशिएटेड पर्सन। इल्तुतमिश ने किया तो उससे रिलेटेड सारा नाम पहले लिख लेते हैं, देन विल प्लान फॉर अनदर। तो ऐसे भी कर सकते हो। दीवाने कजा, दिस इज अ न्यू टर्म, न्यू टर्म दिल्ली सल्तनत में नहीं है बट एज पर एग्जामिनेशन जरूर है। दीवाने कजा, दिस इज हेडेड बाय काजी उल कुज्जत एंड वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट अंडर फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक केम आफ्टर एमबीटी, दैट इज मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। 3 इंपॉर्टेंट रूलर है अंडर तुगलक डिनेस्टी एंड दीज रूलर्स ग्यासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक एंड फिरोज शाह तुगलक, ओके। देन दीवाने खैरात, दिस इज आल्सो इनिशिएटेड बाय फिरोज शाह तुगलक, वेयर ही डिस्ट्रीब्यूटेड चैरिटी, एड टू ऑर्फन्स, विडो एंड द पुअर वन आल्सो, ओके। दीवाने मुस्तकराज, this is the favorite department of many examiners. Diwane Mustakraz started with Alauddin Khilji, where they recovered all the errors of revenue. जितना भी जिसका टैक्स वगैरह बचा होता था उसको एक लेना है, कैसे करना है, करप्शन को कैसे चेक करना है। So he started this दीवाने मुस्तकराज। दीवाने आमिर कोही is another important question. ये सबसे ज्यादा पूछा गया है, दीवाने आमिर कोही एंड दीवाने रिजालत, ठीक है। This is initiated by MBT, Mohammed bin Tughlaq, and they promote agriculture and improved irrigation system, right? Diwane Barid, intelligent department started by Balban, ठीक है, जो मैनेज करेगा सारे न्यूज रिपोर्ट्स और जो क्या करता है, पता लगाता है कि कहाँ पर क्या हो रहा है। Now we have read about these things. Let me know whether you understand this table or not. फटाफट से बताओ क्लियर हुआ कि नहीं। Is there any doubt? तो अभी बता दो so that I can clear. No, ma'am. Great, thank you for answering. Next question we'll discuss. Which ruler shifted his capital from Delhi to Daulatabad? ये भी एकदम प्रैक्टिस वाला रेगुलर क्वेश्चन है एंड आई होप कि इसका आंसर आप लोग करेक्ट देंगे। Alauddin Khilji, Mubarak Shah, Iltutmish or MBT, Mohammed bin Tughlaq. So which ruler started his capital shift? D. D. Very good. Absolutely right. और इसके साथ साथ आपको बिल्कुल ये ध्यान रखना है, these 5 important plan he had made और ये 5 प्लान कैंसिल हुआ है। क्वेश्चंस क्या बनता है, if you are going to give examination UPSC, तब आपको डिस्क्रिप्शन भी पूरा क्लियर होना चाहिए। एंड इफ यू आर गिविंग एग्जामिनेशन बीपीएससी और डब्ल्यूपीसीएस और एनी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, देन दीज डेट्स आर इम्पोर्टेंट, ठीक है। यूपीएससी के लिए तो एंटायर थिंग इज इम्पोर्टेंट, बट इफ यू आर गिविंग एग्जामिनेशन फॉर सिविल सर्विसेज ओनली फॉर स्टेट, तो दीज डेट्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज मेनी टाइम्स दे विल आस्क अबाउट द chronology also. First of all, he planned for transfer of capital दिल्ली से दौलताबाद, ठीक है, डेक्कन की तरफ। यानी जब आप यहाँ पर मैप देखते हैं इंडियन मैप, सो दिस इज दौलताबाद, दिस एरिया इज दौलताबाद एंड देयर इज दिल्ली। तो दिल्ली से यहाँ पर शिफ्ट करना। ओके, व्हाई यू गाइस लेट? इट ऑलमोस्ट लास्ट ऑफ दिस सेशन। चलो ठीक है, फिर भी कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं।
देन टोकन करेंसी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग ही हैड मेड, जहां पर इसने ब्रॉन्ज और कॉपर कॉइन्स का टोकन करेंसी इनिशिएट किया था, विच वाज फेलियर. टैक्सेशन इन दोआब रीजन ही हैज स्टार्टेड, और ये एक अच्छा स्टेप था, बट इसका बैड लक था कि उसी टाइम पीरियड पे क्या होता है, गंगा यमुना फेस्ड अ ग्रैंड फेमाइन, बहुत बड़ा फेमाइन उसी समय हो जाता है, सो दैट इज ऑल्सो फेलियर. देन खोरासन एक्सपेडिशन, ही इज द फर्स्ट रूलर, ठीक है, पहला रूलर है हु हैज प्लान्ड ऑन अटैक ऑन ईरान. मैक्सिमम टाइम पे क्या होता आया है कि many invaders came from Iran or Central Asia and they attacked on India. So we have read about him. But he is the first ruler who had planned on the Iran. So he want to conquer Khorasan. ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी प्लान उसको बीच में ही छोड़ना पड़ता है. Again he faced a grand financial loss. And the final is Karachil expedition, that is Kumaon Garhwal. ठीक है, ही सेंट हिज आर्मी टू कराचिल, हिमालय रीजन पर इसने अपना ट्राइब आर्मी भेजा टू जस्ट कॉन्कर इंपॉर्टेंट ट्राइब ओवर हिमालय रीजन भी, बट ही कंप्लीटली फेल्ड. तो ये 5 चीजें इंपॉर्टेंट है एमबीटी से, और बस यही बार बार पूछा जाता है. एमबीटी से रिलेटेड कोई खास क्वेश्चन कभी नहीं बना इनके अलावा, ठीक है. तो इसीलिए ये जितने भी पॉपुलर चीजें हैं वो मैं आपको मेंशन कर रही हूँ. जस्ट फोकस ऑन दीज थिंग्स and always be prepared for any examination. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. मैम, यस टेल मी. मैम आई एम जस्ट इंटरप्टिंग फॉर अ मोमेंट. हाँ प्लीज. मैम, शायद किसी को पता नहीं है कि आज आपका क्लास है. एक्चुअली सर तो इस टाइम पे क्लास लेते, तो वो क्या करते कि ये वो हमारे वहां पे एक मैसेज भेज देते कि क्लास लाइव हो गया. सब शायद वेट कर रहे होंगे. आप थोड़ा सर को, लेट হয়েছে. हम लोग मैम इसीलिए वेट कर रहे थे. हम अचानक से लॉग इन करने की कोशिश किए, तो आपने ये एंटर करवाया, तो इसीलिए मैंने बोला कि थोड़ा सा एक बार सर को या किसी को बोल के एक बार बता दीजिए, ग्रुप में भेज ये मैसेज करवा दीजिए कि क्लास लाइव हो गया है. हम लोग इसलिए वेट कर रहे थे. ओके जस्ट सेकंड, मैं खुद भी मतलब मुझे सरप्राइज हो रहा था कि ये इतना इम्पोर्टेंट सेशन है और स्टूडेंट्स क्लास में नहीं है. जस्ट अ सेकंड ना. ये तो एक्चुअली सर थोड़ा सा लेट से ही स्टार्ट करते हैं, और हम लोग भी वेट कर रहे होते हैं कि सर मैसेज करते उसके बाद ज्वाइन करते, इसीलिए सबका लेट हो गया है. कोई है नहीं इसीलिए. ओके ओके जस्ट अ सेकंड. मे बी सर बिजी हैं किसी सेशन को लेकर, तो एनी वन ऑफ यू कैन नोटिफाई इन दैट ग्रुप, दैट पर्टिकुलर जो ग्रुप है आप लोगों का. नो मैम, वो तो एक्चुअली व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है ना, वो तो दूसरा ब्रॉडकास्ट सिस्टम है ना, तो सर ही मैसेज कर सकते हैं. हम लोग Oh, को मैसेज करेंगे तो okay. होगा नहीं. Nobody is picking up the phone right now. Don't know what happened. Okay, I'll try again. Just a second. मैम आपका क्लास सैटरडे पे नहीं होगा फिर? नहीं, सैटरडे को ही होगा. अच्छा, एक्चुअली मैम आज तो सर का क्लास रहता है ना, इसलिए. और वहाँ जो आज लिंक आया है मैम, उसमें भी कुछ लिखा हुआ नहीं था कि कॉम्पिटिटिव सेशन है कि जनरल स्टडीज का सेशन है, इसलिए किसी को कुछ पता भी नहीं है. है वहाँ पे जस्ट ऑनलाइन क्लास के बारे में ही लिखा हुआ है. हम लोग सब वेट कर रहे थे मैम लिंक के लिए, मतलब मैसेज के लिए.
ओके गाइस, अभी तो कुछ किया नहीं जा सकता, सो जब भी ग्रुप में कोई क्लास का मैसेज आए ना तो जरा नोटिस करो। हो सकता है कि मुझे मॉर्निंग सेशन ऑल ऑफ सडन दिया गया हो, बट ठीक है, फिर भी ज्वाइन किया करो। यस, एक्चुअली ये एकदम अचानक से इस बार हुआ है, ये ऐसा कभी पहले हुआ नहीं है ना, इसीलिए हम लोगों को भी कोई आइडिया चलो नहीं था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी आज ये भी नोटिस करना कि अपकमिंग जो सैटरडे है, क्या डेट है उस समय? आई गेस 31st है ना? जस्ट 31st है मे बी। नो, नहीं, सैटरडे 26 है। अच्छा अच्छा, ठीक है, वेरी गुड गुड। 31 थर्सडे को। अच्छा हाँ हाँ, अच्छा 2 अगस्त को है सैटरडे, तो 2 अगस्त को मेरा सेशन नहीं होगा, ठीक है? 2 अगस्त को सैटरडे है, उस दिन मेरा सेशन नहीं होगा क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है माउंटेन्स में, ठीक है? चलो चलो, ओके, बैक टू द सेशन। अभी वापस आते हैं, तो जिसका जो मिस हुआ कोई बात नहीं, आई ट्राई टू कंप्लीट ऑल दैट क्वेश्चंस। चलो नेक्स्ट सेशन में देखा जाएगा, बट वापस आओ फटाफट से। सो वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड दिल्ली सल्तनत का, ये कुछ PYQs है, बिकॉज आई हैव फिनिश्ड दिल्ली सल्तनत विद यू, बट दैट इज नॉट अ वेरी स्मॉल टॉपिक, इट वाज अ वेरी बिग टॉपिक एट दैट क्लास ओनली। तो हमने क्या खत्म किया था? हमने डिनेस्टीज के बारे में, रूलर्स के बारे में, एंड व्हाट आर इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच इज कनेक्टेड टू दैट रूलर, सो वी हैव डिस्कस्ड दीज थिंग्स। बट नाउ इन दिस सेशन I have given you some important questions which is already asked in multiple examination. ठीक है, उसी से related we are discussing here. तो question number 5 is which Tughlaq ruler imposed हक-ए-शरफ और irrigation tax? इल्तुतमिश, मुबारक शाह, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। फास्ट। हक-ए-शरफ, इट्स अ irrigation tax। स्टार्ट किया है किसने? इल्तुतमिश, मुबारक शाह, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। द आंसर इज फिरोज शाह फिरोज तुगलक। शाह तुगलक। यस, इतना टाइम नहीं है, मैं बार बार कहती हूँ जल्दी से आंसर किया करो, गलत आंसर करो लेकिन किया करो। चुपचाप बैठ के क्लास लेना कभी भी सही तरीका नहीं है कोई भी सेशंस लेने का, ठीक है? डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर मनी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो जस्ट पार्टिसिपेट इन एवरी सेशन, ठीक है? हक शरफ क्या होता है? इट्स लाइक इरिगेशन टैक्स है, एक खेती पे लिया गया टैक्स है, कल्टीवेशन पे लिया गया टैक्स है। अब यहाँ पर जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसे से रिलेटेड मैंने नोट्स भी बनाया आप लोगों के लिए। फॉर एग्जाम्पल, वेन एवर एग्जामिनर आस्क अबाउट फिरोज शाह तुगलक, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन बनता है। सिविल एंड मिलिट्री ऑफिशियल्स जो होते थे, इससे पहले के जितने रूलर्स हैं वहां पर हेरिडिटरी सिस्टम नहीं था, बट इन्होंने क्या किया? इन्होंने सोचा कि ऑलरेडी मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में इतने सारे चेंजेस एमबीटी ने किए था, जिसकी वजह से एवरीवन वर फेसिंग, वेदर दे वर ऑफिशियल और पीजेंट और जमींदार, जो भी क्लास था सबने फेस किया। तो फिरोज शाह तुगलक वांट्स टू जस्ट कंसोल एवरीवन, तो उसके लिए उसने क्या किया कि भाई सिविल और मिलिट्री ऑफिशियल्स जो है उनकी पोस्ट को हेरिडिटरी कर दिया। देन ही री इम्पोज्ड जिजिया टैक्स, ठीक है? ये क्या करना चाहता था? ये जो मुस्लिम जितनी भी अथॉरिटी थी उसको खुश करना चाहता था फिरोज शाह तुगलक, बिकॉज एमबीटी जो था वो काफी लिबरल था, ठीक है? तो उसने कभी भी रिलीजन को पॉलिटिक्स पे हैवी होने नहीं दिया। इसकी वजह से जो रिलीजियस पर्सन थे, काजी थे, वो सब उससे नाराज रहते थे। तो फिरोज शाह तुगलक अगेन वांट टू कि भाई ये पीसफुल होना चाहिए, तभी उन्होंने क्या किया? जिजिया टैक्स को दोबारा लगा दिया नॉन मुस्लिम्स पे। एंड जिजिया टैक्स क्या है? एक पिलग्रिमेज टैक्स है जो ब्राह्मण्स के ऊपर लगाया जाता था और नॉन मुस्लिम्स पे लगाया जाता था। देन ही क्रिएटेड दीवाने खैरात, दीवाने बंदगान एंड अपॉइंट काजी उल कुज्जत। ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट, ठीक है? जब भी फिरोज शाह तुगलक से क्वेश्चन बना है, इनमें से कुछ पॉइंट से ही रिलेटेड बना है। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Answer. Who brought the Ashokan pillars from Meerut and Topra to Delhi? बलबन, सिकंदर लोदी, नसीरुद्दीन महमूद और फिरोज शाह तुगलक।
इतने आंसर में ना 2 आंसर हो जाएगा, इतना टाइम है। क्वेश्चन समझ में आया? अशोकन पिलर्स को मेरठ से तोपरा और उसके बाद दिल्ली, ये कौन लेकर आया था? कौन सा रूलर लेकर आया था? ये मैंने अपने लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। कुछ भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप लोगों के लिए नया होगा। इट मीन्स कि आप पीडीएफ रीड नहीं करते। यस, बताओ। तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। एब्सोल्युटली राइट। अशोकन पिलर्स, ठीक है, देखो 3 पिलर्स है, मेजर रॉक एडिक्ट है, माइनर रॉक एडिक्ट है और आपके पिलर्स है। ये पिलर्स अशोका ने क्यों लगवाए हैं? ही जस्ट वांट टू स्प्रेड अ मैसेज टू एवरी कॉमन पर्सन एंड दैट इज रिलेटेड टू धम्मा, कि हमें अच्छे काम करने हैं, नोबल कॉजेस होने चाहिए, वी शुड रिस्पेक्ट टू अवर एल्डर्स। ये सारी बातें उसने इन सब पिलर्स में लिखवाया है, ठीक है, बिकॉज ही वाज फॉलोइंग द धर्मा दैट इज बुद्धिज्म, ठीक है, उसको फॉलो कर रहा है, बट ये धम्मा इसने पॉलिसी स्टार्ट किया है। तो फिरोज शाह तुगलक वाज देयर हु थॉट कि ये कुछ इम्पोर्टेंट है, मेटल से कुछ बना हुआ है, कुछ काफी ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट होगा, तो इसको ले चलते हैं। सो इसने क्या किया? अशोकन पिलर्स को मेरठ से निकलवाया और उसके बाद टोपरा से होते हुए दिल्ली में लेकर आया है। ओके, चलो नेक्स्ट। अच्छा, अशोकन पिलर से रिलेटेड भी मैं आपको बता देती हूँ, ये कुछ क्वेश्चंस हैं अशोकन पिलर से रिलेटेड। यही क्वेश्चन ज्यादातर डोमिनेंट हुए हैं आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। लायन कैपिटल, नेशनल एम्बलम। अच्छा, फटाफट से इसका भी आंसर देने की कोशिश करो अगर करते हो तो। इससे कम से कम ये तो पता चलेगा कि where you stand, how much practice you have done. Okay, the lion capital used Sanchi. Okay, chalo. National emblem of India was originally located at. So what is the right answer? You said Sanchi. No, this is not right. And next option, Sarnath is correct answer. ठीक है, very good. Next question. The Ashokan inscriptions are mostly written in which script? Pali. पाली। Pali, wrong. Right answer is Brahmi. ब्राह्मी पहली ऐसी स्क्रिप्ट है जो कि इंडियन रूलर ने इंस्क्रिप्शन में स्टार्ट किया, दैट इज अशोकन इंस्क्रिप्शन। व्हाट मटेरियल? अच्छा, एक बात और है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। दिस इंस्क्रिप्शन इज डेसिफर्ड बाय, पहली बार किसने इन इंस्क्रिप्शंस को डेसिफर्ड किया है और ट्रांसलेट किया है फ्रॉम ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस? तो दैट इज जेम्स प्रिंसेप। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जेम्स प्रिंसेप। Next, what material were Ashokan pillars made of? Granite, red sandstone, marble or Chunar sandstone? Ma'am, Chunar. Chunar sandstone, right. Who among the following transported Ashokan pillars to Delhi? This is easy now. Alauddin Khilji, Balban, Firoz Shah Tughlaq. Tughlaq. Which Tughlaq? There are 2 Tughlaqs. Firoz Shah Tughlaq. Right. Which language was, this is also easy, predominantly used in Ashokan inscription? Sanskrit, Tamil, Prakrit, Persian. ब्राह्मी क्या है? ब्राह्मी आपका है स्क्रिप्ट। अंडर द स्क्रिप्ट लिखा जाता है लैंग्वेज प्राकृत। फॉर एग्जाम्पल, देवनागिरी स्क्रिप्ट है और उसके अंडर में पंजाबी, हिंदी and there were some more language, ठीक है। तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है और प्राकृत लैंग्वेज है। नेक्स्ट, अशोकन एडिक्ट डील मेनली विद मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन, बुद्धिस्ट फिलॉसफी, moral and ethical teachings. Moral and Ma'am, D. ethical D. Very good, very good. Next question, the pillar inscription of Ashoka were carved mainly to commemorate victories, record loss, spread of message of Dhamma, display royal genealogy. C. Ma'am, C. Very good. Which animal is not? ये तो इतना ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है। नेट, सेट, बीपीएससी, एससीसी, every examination. Which animal is not part of the Ashokan lion capital at Sarnath? हर एक पिलर के टॉप में कोई ना कोई एनिमल का साइन है अशोकन पिलर्स पर, लेकिन सारनाथ पिलर है बुल, एलिफेंट, डियर और हॉर्स? हॉर्स, हॉर्स। वेरी गुड, ये बिल्कुल गलत है। डियर इज द राइट आंसर।
ठीक है, एक बार इस आंसर को चेक जरूर कर लेना। डियर, हॉर्स तो नहीं हो सकता है, हॉर्स तो होता ही नहीं है। चलो, यहाँ पे पार्ट नहीं होता है, लेकिन बाकी सब पार्ट है। बुल, एलिफेंट, हॉर्स पार्ट है, लेकिन डियर नहीं। The Ashokan pillar at Allahabad is famous because it contains edicts of Ashoka. It has inscription of Ashoka, Samudragupta, Jahangir. It is an image of Ashoka. It has been shifted to Red Fort. तो क्यों है important? अलाहाबाद यानी प्रयागराज में अशोकन पिलर है, and in that pillar there were some important rulers who have important information in that. और उसका आंसर है बी। अशोका इज ऑल्सो मेंशन देयर, समुद्रगुप्ता इज ऑल्सो मेंशन देयर, एंड जहांगीर भी उसमें मेंशन है। इन तीनों के बारे में उस पिलर पर मेंशन किया गया है। लास्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू अशोका's pillar. The circular base of the lion capital has carving of which symbol? स्वस्तिका, धर्मचक्र, ओम और लोटस? धर्मचक्र। यस। हलीमा, लेट, ओके। धर्मचक्र और लोटस, एब्सोल्युटली धर्मचक्र उसका सर्कुलर बेस होता है। ठीक है, बैक टू द क्वेश्चन ऑफ मिडिवल इंडियन हिस्ट्री। Who was the last ruler of Tughlaq dynasty? This is also easy now. Nasiruddin Mahmud, Firoz Shah Tughlaq, Alauddin Alam Shah. Absolutely, we have discussed about that. Okay, chalo. Next, which ruler built the Alai Darwaza? Alauddin Khilji. Alauddin Khilji is right answer. Qutub Minar's Quwwat ul Islam Mosque is located in Delhi. दिल्ली में कहां पर? अरे कुतुब मीनार, देखो यहीं पर थोड़ा सा सबको माइंड लगाना होता है। ये जो एग्जामिनेशन होते हैं, जितने भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस होते हैं, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसके आंसर्स क्वेश्चन में ही छुपे होते हैं। ठीक है, they just want to check your aptitude and the attitude also, how you solve your question. Next is, who is the head of the Diwan-e-Insha department was called? दाबिर खास, बरीद मुमालिक, आमिर दाद और वकील दाद। तो ये हमने डिस्कस नहीं किया, but we have discussed Diwan-e-Insha, that is related to correspondence. And who was the head? Dabir Khas. Absolutely, Dabir Khas was the head of that department. Which ruler separated religion from politics? Alauddin Khilji, Jalaluddin Khilji, Qutubuddin Aibak और इल्तुतमिश? इल्तुतमिश। नो गाइस, यहाँ पर ध्यान दो, अलाउद्दीन खिलजी। बिकॉज अलाउद्दीन खिलजी वाज थिंकिंग कि कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो उसके ऊपर ऑर्डर कर सके। अंडरस्टैंड? So just he want to separate religion from politics. You were right. आप सबके पास लिंक पहुंचा, still you are joining class late. Why this is so? I'm just confusing in that. अगर मान लो मेरा सेशन नहीं भी है and still you are getting the link, why you are not joining the class? हाँ गाइस, मैम वो मैंने कहा ना आपको, वो एक्चुअली सर थोड़ा सा लेट से ही स्टार्ट करते हैं अक्सर क्लास, इसीलिए तो हम लोग वेट करते हैं भाई। हाँ, तो इसीलिए उन्होंने इस बार जो है सरप्राइज कर दिया आप सबको कि आप लोग टाइम से ज्वाइन करें, है ना? हम सब आराम से बैठ के वेट करते हैं, सर मैसेज करते हैं, उसके बाद ज्वाइन करते हैं। वेरी गुड। मैडम, आपको आज तक क्लास है तो पता ही नहीं है मैम। ये अगर ये लाइन और अगर मैम सही जो से बोलोगे तो मैसेज जो आया था उसमें मैम कुछ लिखा भी नहीं हुआ है कि ये जनरल स्टडीज का सेशन है कि कॉम्पिटिटिव सेशन है, कुछ लिखा हुआ नहीं था मैसेज में। हाँ मैम, ये हुआ। अच्छा, इसलिए हम लोग को और भी समझ में पता नहीं मैम हम चला। लोग तो 8:30 से फोन हाथ में लेके ही बैठे हुए हैं, इसके सर कब मैसेज करेगा ग्रुप में। ओहो,
तो मैम सर क्लास शुरू होने से पहले लिंक भेजा अच्छा था, लेकिन इस बार नहीं भेजा मैम। अच्छा, मे भी कुछ इशू होगा। ओके चलो कोई बात नहीं। तो आप लोगों का क्या क्या मिस हुआ है, एक बार क्या रिकॉल कर दूं मैं सारी क्लास को, या क्या करना चाहिए? मैम आप फटाफट। कंटिन्यू नहीं करिए मैम, ना, आप हम लोग कंटिन्यू रिकॉर्डिंग कीजिए, देख रिकॉर्डिंग में लेंगे, देख आप लीजिए, कंटिन्यू कीजिए। नहीं तो चलो फिर चलो टाइम मैम वेस्ट आप होगा कंटिन्यू और कर ज्यादा। लीजिए। चलो गुड गुड गुड। चलो सो लेट्स मूव ऑन दिस क्वेश्चन कि रिलीजन को पॉलिटिक्स से सेपरेट किसने किया है? सो अलाउद्दीन खिलजी वाज द रूलर हु सेपरेटेड रिलीजन फ्रॉम द पॉलिटिक्स बिकॉज ही डोंट वांट टू कि कोई भी उसके ऊपर कंट्रोल करेगा। अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, स्पेसिफिकली विच डिपार्टमेंट ही हैज इनिशिएटेड। ठीक है, तो डिपार्टमेंट का टेबल आई हैव ऑलरेडी मेंशन हियर। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार जरूर से चेक करना, और ये जितने भी पॉइंट्स मैं आपको दे रही हूँ इसको मिस नहीं करना है। ठीक है गाइस, बहुत सिलेक्टिव चीजें, बहुत सिलेक्टिव नोट्स मैंने बनाए हैं और सारे आपके एग्जामिनेशन के बेस पर ही बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दिल्ली सल्तनत? अफगानी, उर्दू, पर्शियन उर्दू। और अरेबिक? हाँ उर्दू। उर्दू। okay. उर्दू। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू सेइंग दिस उर्दू? एवरीवन? सो दिस इज रॉन्ग गाइस। उर्दू एक ऐसी लैंग्वेज है जो बहुत बाद में स्टार्ट हुई है। ठीक है, बहुत बाद में। उर्दू है क्या? उर्दू हिंदी और जो पर्शियन लैंग्वेज है उसका मिक्स करता हुआ एक लैंग्वेज था। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज पर्शियन because they came from Persia, so they have using their language only, so they made official language कि भाई पर्शियन लैंग्वेज ही होगा because there was no confusion in that. तो पर्शियन लैंग्वेज ही रहा काफी टाइम पीरियड तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन हु हेडेड द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस? मुफ्ती, आमिल, चौधरी और वजीर? वजीर। एवरीवन? चौधरी। चौधरी। और कोई बताओ? दो ही लोग आंसर करेंगे? अभी तो सेशन में आप लोग हो, अभी भी आंसर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब फिर ये पैटर्न जो है वो काम का नहीं होगा। ओके, राइट आंसर इज वजीर। मैंने बताया था ना कि फाइनेंस से रिलेटेड मैटर डिस्कस करता है। यहाँ डिपार्टमेंट में देखो, यहाँ मैंने सब मेंशन किया। फाइनेंस से रिलेटेड मेंटेन करेगा, एक्सपेंडिचर मेंटेन करेगा, रेवेन्यू को मेंटेन करेगा। ठीक है, ये सारी चीजें समझना होगा। अब ये जो बाकी के यहाँ पर आपको पोस्ट नजर आ रहा है, ऑल दीज पोस्ट आर इम्पोर्टेंट और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बने हैं। मुक्ति की बात करते हैं, तो मुक्ति क्या है आपका? वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इक्ता सिस्टम। ठीक है, इक्ता सिस्टम विच इज इनिशिएटेड बाय इल्तुतमिश। तो उसने अपने डिपार्टमेंट में एक पोस्ट बनाया, दैट इज मुक्ति। मुक्ति कौन होता है? ये है गवर्नर, गवर्नर ऑफ प्रोविंस। ठीक है, कौन अपॉइंट करता है? सुल्तान इसे अपॉइंट करेगा कि आप जो भी इक्ता यानी कि जो भी प्रोविंसेस बनाते हैं उसका जो हेड होता है उसे मुक्ति कहा जाएगा। ठीक है, इसका काम है पूरा लॉ एंड ऑर्डर अपने एरिया में मेंटेन करना। तो ये इंपॉर्टेंट पर्सन है। नेक्स्ट आता है अमील। अब ये अमील कौन है? अमील टैक्स कलेक्टर है प्रोविंसेस का। अब आप बोलोगे कि मैम आप तो वजीर कह रहे थे। अरे वजीर इज द बिग पोस्ट, ठीक है, बट ये आपका जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो गया या छोटे एरियाज पे हो गया, जो पीजेंट से जाके टैक्स कलेक्ट करेगा वो है आमिल। ओके, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा, जिसे आप बाद में पटवारी भी कह सकते हैं। नेक्स्ट इज चौधरी। चौधरी जो है वो है विलेज का हेडमैन। ये सारे टर्म्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोबारा इन टर्म्स पे मैं फिलहाल डिस्कस करूंगी नहीं जल्दी, बट ये सारे टर्म्स इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखो। देन वजीर, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दैट।
तो ये चारों जो है आपके इंपॉर्टेंट है और चारों आपके एग्जामिनेशन में आए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इब्राहिम लोदी से रिलेटेड। सो इब्राहिम लोदी वाज द सन ऑफ हुम? सिकंदर लोदी, महमूद लोदी, सिकंदर बहलोल लोदी। लोदी। वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट, सिकंदर लोदी का बेटा है। अच्छा, व्हाट इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड विद इब्राहिम लोदी, बता सकते हो क्या? जल्दी, what is most important point? What? पानीपत हुआ। First battle of Panipat. Very good. First battle of Panipat. What is the year of that? डेट तो छोड़ो, डेट तो याद नहीं है, बट बैटल का ईयर बताओ। Guys, Panipat battle happened during 1523. 26, sir. Yes, there were 3 battles. 3 टोटल बैटल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट बैटल 1526, ये अभी आप लोग इसको एक बार अपना नोटबुक में लिखो, क्योंकि ये चीज तो हमेशा सबके माइंड में रहना चाहिए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, बैटल ऑफ पानीपत, टोटल 3 बैटल, सबके ईयर्स, ये तो ऐसे दिमाग में रखना चाहिए, बिकॉज यू आर दी स्टूडेंट ऑफ व्हाट, की हिस्ट्री पढ़ रहे हो, नॉट ओनली स्टूडेंट बट यू आर सिटीजन ऑल्सो ऑफ इंडिया, तो ये तो रिलेटेड होना ही चाहिए सबका। 1526 में जो बैटल होता है, एक तरफ है इब्राहिम लोदी और उसके वर्सेस कौन है? बाबर। वेरी गुड, बाबर मुगल रूलर है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड बैटल आता है 1556, एब्सोल्युटली करेक्ट, वर्सेस अकबर एंड हेमू। नाउ थर्ड बैटल इज 1761, वेरी गुड, between इंग्लिश Marathas versus Gajni. Maratha versus whom? नहीं, Maratha versus whom? अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली। अब देखो, अब आप लोगों को लग रहा होगा कि मैम बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में पढ़ना जरूरी है, ठीक है, तो टेंशन मत लो, यहाँ तक आप अभी फिलहाल माइंड में रखो, और ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली व्हेन आई विल मेक पीडीएफ फॉर यू, और जब पीपीटी डिस्कस होगा तो ऑटोमेटिकली आपको सब ध्यान में आ जाएगा, बट ये चीजें माइंड में होनी ही चाहिए। ओके, नेक्स्ट, Who transferred his capital from Delhi to Agra? सिकंदर लोदी, उस्मान अली खान, खिज्र खान और मोहम्मद बिन तुगलक। सिकंदर लोदी। मैम ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, सिकंदर लोदी। आप इसको यहाँ पर क्लियर करो, सिकंदर लोदी जो है, लोदी टाइम पीरियड में सेकंड नंबर पे आता है। आगरा को जो अगर क्वेश्चन ये आता है हु फाउंडेड आगरा, तो उसका आंसर भी सिकंदर लोदी है, ठीक है। और सिकंदर लोदी से रिलेटेड कुछ और टर्म्स भी आ सकती हैं, वैसे तो अब नहीं आती हैं, क्योंकि मैक्सिमम टाइम पे बहुत टाइम से, मतलब 10 ईयर से ऑलमोस्ट सिकंदर लोदी से रिलेटेड कई क्वेश्चंस बने हैं, बट ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दिल्ली से किसने आगरा कैपिटल शिफ्ट किया है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में एक काफी टाइम पीरियड तक दिल्ली कैपिटल था, ठीक है। लेकिन फिर मुगल टाइम पीरियड पे आप देखोगे कि जहांगीर तक कैपिटल आगरा रहता है, तो कैपिटल से रिलेटेड भी क्वेश्चन जरूर बनते हैं, उसको भी माइंड में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच डिनेस्टी रूल्ड आफ्टर तुगलक एंड बिफोर लोदीज? स्लेव, खिलजी, सैयद और लोदी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट। अगर हम इतने क्वेश्चंस को करने के बाद थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, देन ओनली आई कैन से दिस पीडीएफ इज सक्सेसफुल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच डिनेस्टी रूल्ड फॉर द शॉर्टेस्ट टाइम? ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम में डाल चुका है। स्लेव, खिलजी, लोदी और सैयद। खिलजी और खिलजी, एब्सोल्युटली राइट।
देखो सोचने की बात है, मोस्ट स्ट्रॉन्ग रूलर अमंग ऑल देवी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, बट स्टिल द डिनेस्टी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी इज वेरी शॉर्ट, बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए था। How many dynasties ruled Delhi Sultanate between 1206 and 1526? 5. 2, 3, 4, 5. 5. Okay, very good. We have discussed this also. So this is the reason I am giving these PYQs. कि इससे आपका दिल्ली सल्तनत से जितने भी important information which we have missed in our PDF will cover in this PYQ session. So Qutbuddin Aibak ruled from which time period? 1200 to Option 1210. ऑप्शन बी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इतने ही टाइम पीरियड तक उसने रूल किया क्योंकि ये डाइड इन अ गेम, कुछ गेम खेलना था, उसमें इसकी डेथ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इल्तुतमिश रूल ड्यूरिंग व्हिच टाइम पीरियड? ऑप्शन बी। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सब लोग आंसर करो ताकि नेक्स्ट टाइम मैं इससे थोड़ा टफ क्वेश्चन ही रेडी कर पाऊँ। रजिया reign lasted from, Razia Sultana ऑप्शन बी। was daughter of Iltutmish. She took control. Option B, absolutely, 1236 to 1240. ठीक है, इल्तुतमिश ने इसके टाइम पीरियड में रजिया सुल्ताना को अपना नॉमिनेट किया कि भाई ये नेक्स्ट सुल्तान बनती है, एंड शी वाज द ओनली लेडी जो इंटायर दिल्ली सल्तनत ही नहीं पूरे मुस्लिम रेन में एक ऐसी मतलब क्वीन है जो कि पूरा वो बैठती है, कोर्ट में जाके बैठती है, अदरवाइज कोई लेडी नहीं है। नेक्स्ट है बलबन रूल करता है किस टाइम पीरियड तक? ए, बी, सी? ऑप्शन ए। ए 1266 to 87. यस, 1266 to 1287। अच्छा, अब आप लोगों को नोटिस ये करना है, आई एम आस्किंग 3 कंटिन्यूएशन केस, इल्तुतमिश, रजिया, बलबन, लेकिन इनके टाइम पीरियड में कुछ तो झोल-झाल है। अब इस चीज को नोट रखना ताकि जो क्वेश्चन आने वाले होंगे उनमें से इसका एक आंसर होगा। नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग डिड द स्लेव डिनेस्टी रूल? 84 years। वेरी गुड, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। यस, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए बिल्कुल ध्यान रखोगे। Who followed Qutbuddin Aibak? Yes, आराम बताओ। धर्म शाह। Yes, yes, yes. हम लोगों ने ये क्वेश्चन डिस्कस किया है पहले। आराम शाह, he was the son of Qutbuddin Aibak, but ये बहुत टाइम पीरियड कम था क्योंकि he was not strong ruler, he was not competent, तो इसके टाइम पीरियड में ऐसा हुआ। नेक्स्ट इज नसीरुद्दीन महमूद रेन। देखो यहाँ पर आया है क्वेश्चन, ऑप्शन डी नसीरुद्दीन महमूद। यस, नसीरुद्दीन महमूद कौन है? ही वाज द सन ऑफ हू? रजिया। नहीं, रजिया का तो ये ब्रदर है रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज शाह इज आल्सो ब्रदर ऑफ हर। नसीरुद्दीन महमूद भी था, और ये बहुत कम टाइम पीरियड तक इन्होंने रूल किया। इसके बाद जो नेक्स्ट रूलर बनेगा वो है बलबन। ठीक है, गयासुद्दीन बलबन। विच रूलर डिफीटेड इब्राहिम लोदी एट पानीपत? अच्छा, ये हमने डिस्कस किया, चलो आंसर बताओ। हैदर अली, अकबर, टीपू सुल्तान, बाबर। चलो ये आसान हो गया, डेट साथ साथ में लिखते रहना है सो दैट डेट बिल्कुल माइंड से नहीं जाएगा। विच रूलर एनेक्स्ड बंगाल टू सल्तनत? बलबन, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी is right answer. No, Iltutmish is not right answer. This is around 13th century. ठीक है, 13th century के टाइम पीरियड के आसपास, यानी 1200 कुछ ईयर में बख्तियार खिलजी केम, और ये क्या करेगा? ये सेनाज रूलर है लक्ष्मण सेना। ठीक है, लक्ष्मण सेना लास्ट हिंदू रूलर इन बंगाल, उसको डिफीट करता है, एंड ही डिस्ट्रॉय मेनी यूनिवर्सिटीज एज वेल, और बंगाल को सल्तनत में मिला लेता है। बख्तियार खिलजी तो सुल्तान नहीं था, वो तो ये वो मोहम्मद
घुरी का सेनापति था, तो बिल्कुल इसलिए था, मैं बिल्कुल था, मुझे पता है हाँ कि ये कंफ्यूजन होता है। बख्तियार हाँ खलजी, इसलिए लोग ये भी कंफ्यूज होते हैं कि ही इज रिलेटेड टू खलजी डिनेस्टी, बट वो भी नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, दिस इज राइट कि ये बंगाल को सल्तनत में, बिकॉज दिल्ली सल्तनत कंप्रेस में सो मेनी रूलर्स, सो मेनी डिनेस्टी, तो उससे रिलेटेड ये है कि अब ये उसको एक सल्तनत में एनेक्स कर लेगा। अनदर क्वेश्चन, ये इजी है, हु डिस्ट्रॉय नालंदा यूनिवर्सिटी? बख्तियार खिलजी। Absolutely, very good. Tabaqat-e-Nazri, this is the last question. Tabaqat-e-Nazri, मिनाज Abul सिराज, Fazl, Ibn Battuta, Al-Baruni और Minhaj-us-Siraz? मिनाज सिराज, Right. Minhaj-us-Siraz was the court chronicle और court writer. किसके टाइम पीरियड में कोर्ट राइटर है? इल्तुतमिश के टाइम पीरियड में कोर्ट राइटर है, ठीक है। और भी बहुत सारी पोस्ट पे मिनाज-उस-सिराज है। ही वाज अ वेरी गुड राइटर, उसने बहुत सारी बुक्स लिखी, बट ही वाज फेमस फॉर तबाक़त-ए-नाज़री बिकॉज ही लाइक्ड नसीरुद्दीन महमूद, जो इल्तुतमिश का बेटा है, उसको पसंद करता है, एंड ही वांट टू रिप्लेस रजिया सुल्ताना विद नसीरुद्दीन, ठीक है, तो इसलिए वो सपोर्ट उसको करता है। अब अबुल फजल इंपॉर्टेंट है क्योंकि अकबर के टाइम पीरियड में अकबरनामा इसने लिखा है। इब्न बतूता इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे किससे रिलेटेड है बता सकते हो? इब्न मोरक्को, बतूता, हाँ, मोरक्को, he came from Morocco, but which ruler connected with Ibn Battuta? मोहम्मद बिन तुगलक, Yes, Ibn Battuta is very important, कई बार क्वेश्चन आता है। इब्न बतूता एक फॉरेन ट्रैवलर है, he came from Morocco, मोरक्को से आता है, ठीक है, और he stayed in the डिपार्टमेंट ऑफ काजी वाला जो डिपार्टमेंट होता है उसमें भी ये वर्क करता है। और ये किसके पैट्रोनेज में है? एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक के पैट्रोनेज में है। उसके बाद ही हैज रिटन अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक, दैट बुक इज रिहला, किताबुल इससे रहला, रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये तीनों ही पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। अल बरूनी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ही हैज ऑल्सो रिटन इम्पोर्टेंट बुक किताबुल हिंद एंड अबुल फजल अंडर द टाइम पीरियड ऑफ अकबर। तो ये चारों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑलरेडी सेशन का टाइम हो गया है। आई हैव वन मोर क्लास विद सम स्टूडेंट्स। तो अब मुझे बताओ कि कोई कंफ्यूजन है दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड? अब कुछ भी? यस और नो गाइस? No, ma'am. We are good. ओके, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन ज्यादातर हो सकते थे, आई हैव मेंशन ऑल द क्वेश्चंस। इसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन होने वाला है विच इज रिलेटेड टू मुगल एम्पायर, ठीक है। ओके देन, गुड डे, अपना करो आप लोग एंजॉय। पीडीएफ मैं ग्रुप में दे दूंगी, जस्ट रीड ऑल द पीडीएफ और क्वेश्चंस ध्यान से समझना। जिसके आंसर्स नहीं मैच हुए हैं जरूर से दोबारा से आप लोग प्रैक्टिस करोगे। ओके, गुड बाय, टेक केयर एवरीवन। बाय मैम।